Good morning, everyone. As per the discussed in last lecture, we have to discuss some natural disaster categories in some points. First one is a atmospheric disaster, terrestrial disaster, aquatic disaster, and biological disaster. So, example of atmospheric disaster include blizzard, thunderstorm, lightning, tropical cyclone, tornado, droughts, hailstorm, frost, heat wave, cold wave, etc. Terrestrial disaster include earthquake, volcanic eruption, landslide, avalanches, subsidence, etc. Aquatic disaster include flood, tidal wave, storm, surge, tsunami, etc. Biological disaster include fungal, bacterial, and viral disease, that is bird flu, dengue, etc. COVID-19 also included in this category. The next is very high damage earthquake risk zone. Northeastern in the India include the eastern regions area to the north of Darbhanga and Araria along the Indo-Nepal border in Bihar, Uttarakhand, western Himachal Pradesh around Dharamsala and Kashmir Valley, the Himalayan region and the Kanchan कच्छ गुजरात. तो दीज आर द हॉट स्पॉटेड ऑफ द अर्थक्वेक रिस्क जोन है इंडिया में. ये रिस्क जोन है कच्छ गुजरात में. ईयर 2000 में अर्थक्वेक आया था. तो दीज आर द इंडियाज रिस्क जोन. हाई डैमेज अर्थक्वेक रिस्क जोन देखते हैं. इन इंडिया आर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थन पार्ट ऑफ पंजाब, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड नॉर्थन बिहार. दीज आर द हाई डैमेज अर्थक्वेक रिस्क जोन है. अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन नॉर्मली cause the sea floor to move abruptly, resulting in sudden displacement of ocean water in the form of high vertical waves, which are known as tsunamis, shown in the image given below. एक दिए नीचे इमेज में दिखाएंगे tsunamis की जो वेव्स रहती है ना, अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एरप्शन जो रहता है, नीचे जो भूकंप और अंदरूनी कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे जो लहरें होती हैं, सी फ्लोर होती हैं, वो सडन डिस्प्लेसमेंट हो जाती हैं ओशन वाटर में और हाई वर्टिकल वेव क्रिएट होती हैं जिनको हम टी सुनामीज कहते हैं. टी सुनामी कैन बी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंटली अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पर्टिकुलर along the coast of Alaska, Japan, Philippines and other islands of South Asia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Sri Lanka and India, etc. Tropical cyclones are intense low pressure areas confined between, this is the latitude level $30 circus NS. So this is the latitude. The center of the cyclone is mostly a warm and low pressure cloudless core known as eye of the storm. The ideal location of the tropical cyclone in India, Bay of Bengal. Bay of Bengal में सबसे ज़्यादा tropical cyclone की वो होती है, possibilities होती है. Cyclone in the Bay of Bengal normally developed in the month of October and November. इसके बाद देखते हैं डिजास्टर मैप है ये, है ना, कि किस सिटी में क्या रहता है. जो पहले आपका साइक्लोन प्रोन होगा, फ्लड प्रोन होगा, ड्रॉट प्रोन होगा, हॉट डेजर्ट होगा, फ्रीज डेजर्ट होगा. तो दीज आर द बेसिकल इंडिया डिजास्टर मैप की किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कौन सा डिजास्टर के होने की पॉसिबिलिटीज़ होती है. इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट. द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 defines disaster as a catastrophe, mishap, calamity of or grave occurrence affecting any area arising from natural or man-made causes or by accident and negligence which result in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of environment and is of such nature and magnitude as to be beyond the
कॉपिंग कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ द डिफेक्टेड एरिया। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो डिजास्टर मैनेजमेंट बिल है 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें इसकी ये डेफिनेशन दी गई थी कि कैटास्ट्रॉफी मिसहैप कैलेमिटी होती है ये, जिसमें फ्रॉम नेचुरल एंड मैन मेड कॉजेज, कुछ इंसान और ह्यूमन के द्वारा कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं जिससे ये चीज़ बाई एक्सीडेंटली और नेग्लिजेंस रिजल्ट इन सब्सटेंशियल लॉस ऑफ लाइफ और ह्यूमन। ठीक है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेजमेंट बिल में 2005 में बताया गया है। अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनडेक्वेट रेनफॉल इज नोन एज मेटरोलॉजिकल ड्रॉट। इनडेक्वेट रेनफॉल होने लगता है कभी भी किसी भी समय पे, तो ये मेटरोलॉजिकल ड्रॉट होता है। व्हेन सॉइल मॉइस्चर दैट इज नेसेसरी टू सपोर्ट द क्रॉप्स इज लो और इनसफिशिएंट टू सपोर्ट क्रॉप कल्टीवेशन, इट इज नॉन एग्रीकल्चर ड्रॉट। जब जो सॉइल मॉइस्चर होता है, मिट्टी में जो नमी रहती है, उसके हिसाब से जो अपन फार्मर लोग जो एग्रीकल्चर में पॉलिसीज़ यूज़ करते हैं, तो वो इट डिपेंड ऑन सॉइल मॉइस्चर। व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फेल because of the shortage of water and as a consequence of ecological distress, damage occur in the ecosystem, it is known as ecological drought। तो दिस इज़ द बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट बिल के बारे में बताया, फिर एग्रीकल्चर ड्रॉट बताया, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट बताया, इकोलॉजिकल ड्रॉट बताया, तो ये चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इंडिया में जो भूगर्भ में वो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस सम डिजास्टर मैनेजमेंट बिल। जैसे कि मेट्रोलॉजिकल सिचुएशन में क्या आ रहा था कि इनडेक्वेट रेनफॉल होने लगे, है ना, कभी किसी समय वो बर्फ़ा होने लगे, तो ये क्या है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है, मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर मानो इसको। अगर सॉइल मॉइस्चर जो होता है, सॉइल मॉइस्चर डिपेंड सपोर्ट द क्रॉप, जो फसलों को वो करता है, सपोर्ट करता है सॉइल का मॉइस्चर, मिट्टी में जो नमी रहती है, तो अगर ये इनसफिशिएंट होने लगे तो कहीं ना कहीं क्रॉप जो फसल होती है उसको नुकसान होने लगता है, तो इट्स नोन एज एग्रीकल्चर ड्रॉट। इसके बाद अगर इकोसिस्टम जो है अपने चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होने लगे कि शॉर्टेज ऑफ वाटर, जो आज के समय में इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ आवर स्टेट, तो दिस is known as ecological drought। तो बेसिकली इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस सम डिजास्टर मैनेजमेंट बिल और डिजास्टर एरिया इन आवर कंट्री। जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा क्या आता है। राजस्थान में आप देख रहे होंगे येलो कलर का है, तो हॉट डेजर्ट दिख रहा है, मतलब यहाँ गर्म हवाएं, ये सारा ज़्यादा वो रहता है। ठीक है, जितना भी रेड वाला है वो फ्लड प्रोन है। ठीक है, जो साइक्लोन वाला है वो साइक्लोन से आप एरिया देख पा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोगों ने इसको कैटेगराइज किया है। थैंक यू।